Very good afternoon to all of you. Hello, dear students. How are you, beta? पारस बत्रा, तमन्ना कुमारी, कैसे हैं आप सब? चलिए. I am unable to unmute. So, ma'am, students are saying कि they are unable to unmute, so kindly allow them. Is it possible? Otherwise, you can ask your doubt. Huh? You can ask your doubts in the chat box. In the today's class, we are going to discuss so many important things related to your mains exam for Haryana Judiciary, Rajasthan Judiciary, and for all judiciary exam. So I'm just waiting only for 1 minute for all the students to join us. Otherwise, I will start the class. Paras, what problem do you have when you are going to appear for judiciary mains? Basically, in which topic you face so many problems? Pressy, I will complete today. I will complete today the Pressy. Other than Pressy, do you have any problem related to anything else? Writing. Okay. So in the next classes, like in the today class, we will cover Pressy, and in the next class, we will cover essay writing and then translation. Means to say ki day by day, whenever you will have a doubt class, I will try to complete some topics in the doubt class itself. For today, we will go for the Pressy writing. I will discuss all the rules of Pressy writing today. Provide us your notes. I have told Vaishali ma'am already about it. She will send you some sample copy of essay. I have given her some essay. She will forward you. Okay. Paras, this is not in my hand to allow you to unmute. As ma'am has told me that the students can ask the doubt in the chat section. So I can do nothing for this. मैम एक बार पूछ लो कि अनम्यूट के लिए बोल रहे हैं बच्चे. मैम, हेलो मैम. मैम, बच्चे अनम्यूट के लिए बोल रहे हैं, एक बार पूछ लो. चलिए बच्चों, और बच्चे आते रहेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे. सो इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज Pressy writing. Okay, we are going to do Pressy writing. चलिए, we are going to do Pressy writing. I'm going to tell you some rules related to Pressy writing so that we will solve some questions related to Pressy. Okay? एक मिनट. हाँ, पारस क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए. So we are going to write some rules related to Pressy writing. Okay, so that you will be able to write down. I am going to dictate some rules and you have to write it down. ठीक है, कुछ रूल्स मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को लिखने हैं, फिर उसके कुछ सैंपल एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे. सबसे पहले लिखिए, what do you mean by Pressy writing? This is question number 1. What do you mean by Pressy writing? What do you mean by Pressy writing? लिखो, a Pressy writing is a art. A Pressy writing is an art which
tells us, a Pressy writing is an art which tells us how we can write a short piece of writing, how we can write a short piece of writing without changing the meaning of the question, without changing the meaning of the paragraph. So Pressy writing is an art which teaches us how we can short the given paragraph without changing its grammatical meaning as well as its literate meaning. So प्रेसी राइटिंग में हम लोग करते क्या है कि दिए हुए पैराग्राफ को शॉर्ट करते हैं. अब अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा है वो 3rd या 4th क्लास में पढ़ता है, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आप सभी ग्रेजुएट हैं या कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइटिंग स्टाइल बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स. 4th के बच्चे को अगर मैं कहूँ कि आपको ये जो गिवन पैसेज है इसको शॉर्ट करना है, वो बहुत इजीली शॉर्ट कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा टेंस को कैसे बदलना है, नहीं बदलना. उसको बस ये पता है मैडम ने बोल दिया इसको शॉर्ट करना है, ना उसको ये पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखना है या हटाना है. बीइंग यू द स्टूडेंट फॉर जुडिशरी, है ना, आपको प्रेसी राइटिंग का जब तक आर्ट नहीं आता होगा तब तक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट क्या लिखना है क्या नहीं लिखना. ठीक है, तो इसीलिए आज की मैंने क्लास अरेंज करवाई है आपकी, और आपने भी बोला बार बार, तो इसीलिए आज की क्लास रखी गई है सो दैट आई कैन टीच यू द आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग. ठीक है, तो प्रेसी होता क्या है, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को शॉर्ट कर देना प्रेसी होता है. लेकिन कैसे उसको शॉर्ट करेंगे, लिखिए रूल नंबर या पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे विदाउट चेंजिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, विदाउट चेंजिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज you have to write a précis. Without changing the main idea of the passage, you have to write a précis. बिना मेन आइडिया को चेंज किए आपको प्रेसी लिखना होता है, मतलब उसका मेन आइडिया चेंज ना हो. पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे यू शुड अंडरलाइन सम की वर्ड्स. You should underline some keywords, idioms and phrases, and some important words. You should underline some keywords, some idioms and phrases, and some important words so that after the completion of the passage, you can make them your title. So that after completion of the passage, you can make them the title of the passage. क्योंकि आपको प्रेसी में टाइटल लिखना होता है, पढ़ते समय ही आपने क्या करना है कि अंडरलाइन करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि इडियम फ्रेजेस हैं, कोई फ्रेजल वर्ब्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको हम ऑलरेडी अंडरलाइन करते चलेंगे. खास तौर पे कौन से वर्ड जो मैक्सिमम यूज़ हुए हैं, जिनके बारे में मैक्सिमम बोला गया है. बिकॉज प्रेसी का जो टाइटल होता है वो हमेशा उसके चारों तरफ घूमता हुआ होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है. तो प्रेसी का जो टाइटल होगा वो हमेशा क्या होगा, जो प्रेसी के चारों तरफ घूम रहा है वही उसका टाइटल होगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नंबर 3. लिखो while we are writing Pressy, we should always use third person. While we are writing Pressy, we should always use third person. While we are writing Pressy, we should always use third person instead of first or second person. While we are writing Pressy, we should always use
थर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्स्ट और सेकंड पर्सन। प्रेसी लिखते समय फर्स्ट या सेकंड पर्सन नहीं लिखते, वी ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन टू राइट अ प्रेसी। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि थर्ड पर्सन लिखते हैं? बिकॉज प्रेसी का मतलब ही क्या है कि हम ये बात किसी और को समझा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपका नाम मैं जानती हूँ कि मेरी क्लास में पारस बत्रा है, पायल गर्ग है, तो ये दोनों बच्चों को मैं पर्सनली जानती हूँ, लेकिन प्रेसी लिखा जाता है किसी उस पर्सन के लिए जो इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ने से बच रहा है। मान लीजिए आप ही की बात करें, आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी आनी चाहिए, आपने जजमेंट लिख दिया, अब वो आपको अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना है। तो जब आपका सीनियर उसको रीड करेंगे तो उन्हें ये नहीं पता कि वहां पर राम और सीता कौन थे। आपको वहां पर कोई एक्स वाई जेड कोई थर्ड पर्सन लिखकर उनको समझाना पड़ेगा कि देयर वाज अ दैट पर्सन। सो वी शुड ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन इन प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। नेक्स्ट लिखिए, वी शुड ऑलवेज यूज, वी शुड ऑलवेज यूज indirect speech, we should always use indirect speech when we are writing a précis. We should always use indirect speech when we are writing a précis. précis लिखते समय हमें हमेशा indirect speech को use करना है। means to say कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच मीन्स कि जब हमें उसका टेंस, अच्छा मैम चलिए ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब आप टेंस नहीं बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब आप किसी चीज का टेंस बदल रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें जो प्रेसी है वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को जानते हैं। यू नो नरेशन, आई होप। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर और लिसनर एक दूसरे को नहीं जानते। तो प्रेसी का टोटल मीनिंग ही क्या है? हम किसी ऐसे थर्ड पर्सन के लिए लिख रहे हैं जो हमें नहीं जानता है, जो स्पीकर और लिसनर दोनों को नहीं जानता है। नेक्स्ट लिखिए, यूजेस ऑफ टेंसेस, यूजेस ऑफ टेंसेस लिखिए, while we are writing a précis, while we are writing a précis, we should always use the same tense. While we are writing a précis, we should always use the same tense as the tense is mentioned in the passage. précis लिखते समय उसी टेंस में लिखेंगे जिस टेंस में वो पैसेज लिखा गया है। While writing a précis, we should always use the same tense that is written in the passage. तो टेंस नहीं बदलना। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है, पारस, पायल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो पारस। हाँ हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है। बोलो आगे। अगर, हाँ सुनो सुनो, अगर मेरे पास वहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई स्टेटमेंट है जिसमें नरेशन यूज हुई है, ठीक है, बाकी पूरा प्रेसी तो नरेशन में नहीं होगा पारस,
पूरा का पूरा पैसेज तो नॉर्मल पैसेज होगा, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट मेरे पास डायरेक्ट स्पीच में दी हुई है, जैसे मैंने कह दिया राम, कुछ भी लिख दो, सेड टू यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर नॉट writing a letter. This is the statement given in the précis. So now you have to change the tense because this is the direct speech and you have to make them indirect. Got it, Paras? Okay. अगर आपको कोई स्टेटमेंट नारेशन की फॉर्म में दी हुई है तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन जनरली पूरा पैसेज हम लोग उसी टेंस में रखेंगे जिस टेंस में वो पैसेज हमें दिया गया है. प्रेसी लिखते समय पैसेज का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे पास उस पैसेज में कोई डायरेक्ट स्पीच है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी. गॉट इट, पारस एंड पायल, बोथ ऑफ यू? चलें आगे. नेक्स्ट पॉइंट. कोई डाउट यहां तक जितना मैंने बता दिया आपको? नो डाउट. चलिए आगे लिखिए. नेक्स्ट लिखिए, वी शुड ऑलवेज मेक 1/3 ऑफ द पैसेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी शुड ऑलवेज मेक 1/3 ऑफ द पैसेज. सपोज द पैसेज हैज 300 words. So what we will do, we will make its 1/3 as a précis. It means now I have to write down 100 words for the précis writing. I have to write down 100 words as a précis writing. Now there are some questions in the mind of the students that whether the précis writing may be of 90 words or it may be of 120 words. That may be the possibility. So what you have to do, you have to practice the précis in the format of some boxes. आप लोगों को शायद पता होगा, अदरवाइज आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं. एक शीट मिलती है मार्केट में, ठीक है, और इस शीट में ऐसे बॉक्सेस वाइज शीट होती है. 100 बॉक्सेस बने हुए हैं, 120, 150, 200 वाली ऐसे शीट्स मिलती हैं. सो व्हेन यू आर राइटिंग अ précis, when you are writing a précis, you should try to write that précis in these boxes and then calculate your number of words. For 1%, if I am saying that 100 words you have to write, so how much more words you can write? You can only write 10 to 15 words extra while you are writing précis, otherwise your marks will be deducted. What I am telling you, you can just write only 10 to 15 words extra while you are writing a précis, otherwise your marks will be deducted. तो précis लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर मेरा पैसेज 300 वर्ड्स का था तो मैं précis ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड्स का लिख सकती हूँ? 110 का. अगर 110 वर्ड से ज़्यादा मेरा précis लिखा गया तो वहाँ पर मार्क्स मिलने की बजाय मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. गॉट दिस पॉइंट, पारस एंड पायल? गॉट इट? तो वी है, सॉरी क्या क्या बोल रहे पारस? हाँ हाँ पहली बात तो कि आपको 90 करना ही नहीं है, आप 5-7 वर्ड एक्स्ट्रा लिख कर आएँ, क्योंकि आपको 1/3 मानकर चल रहे हैं तो 1/3 तो कंप्लीट करना ही है एटलीस्ट, लेकिन उससे 5-7 वर्ड आप ऊपर लिख सकते हैं. पर कोई बच्चा कहे अगर मैं 150 वर्ड लिखाया तो इट मीन्स कि उसको 25 में से जो मार्क्स मिलने वाले थे वहाँ पर उसने 5 नंबर और माइनस करवा लिए. ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिखना है, कम तो लिखना ही नहीं है. और दूसरी बात कि आप लोग बॉक्स में घर पे प्रैक्टिस किया है कभी आज तक? précis लिखते हैं? नो ना, तो अब प्रैक्टिस करनी है. आप एक काम कर सकते हो, अगर आप लोग मुखर्जी नगर क्योंकि नहीं आते हैं तो आप घर पर क्या करोगे, खाली एक प्लेन पेपर A4 साइज जो शीट होती है वो लो, उसके ऊपर इक्वल बॉक्सेस बनाकर उसका फोटोकॉपी करा के एंड देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग précis.
so that you will come to know about the exact number. Even पेपर में भी यही फॉर्मेट होता है, एग्जाम में भी हम लोग प्रेसी कैसे लिख कर आते हैं, सीधा डायरेक्ट जैसे हमने पैराग्राफ लिख दिया या एस्से लिख दिया. यू शुड नॉट डू दैट. Even in the examination hall, you have to make a box, then you have to make some number of boxes there and write down the précis in it. This is the rule for writing a précis according to the competitive exams. Okay, clear? Now बच्चा कहता है कि मैम, हाँ बोलो बोलो पायल. Payal, you have to make the boxes there, not temporary. You have to write your précis in these boxes. Nobody will deduct your marks if you have make the boxes and write their précis in that. Got it? Okay. Because मैं आज पहली बार जुडिशरी नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत सालों से मैं जुडिशरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और बहुत सारे बच्चे मेंस में अपीयर होते हैं हर साल. एंड आई टीच देम द सेम मेथड, दे डिड द सेम experience there, they follow me there, and definitely they get good marks, because this is only the difference between those students who are taking coaching and those students who are not taking coaching for mains, or who did not get any coaching related to English. So you have to make the boxes there and write your précis in these boxes. This is clear now? Your number is 1/3. ठीक है, you can increase your précis only by 10 to 12 words maximum. Now लिखिए, in précis article, preposition and modals are helping verb are counted. In précis, article, preposition, modals and helping verb are counted. précis लिखते समय ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं. यदि आपने एन द बिना सोचे लिखते चले गए और सोचा कि ये तो काउंट ही नहीं करना, खाली मुझे तो वर्ड्स काउंट करने हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. आर्टिकल, प्रेपोजिशन जितनी भी होती हैं, मॉडल्स शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, ऑट टू, देयर, प्रेपोजिशन कोई भी, between, among, in, on, at, into, onto, between, behind, beside, after, ठीक है, since, for, and helping verb is, am, are, was, were, has, have, had been, will have been, shall have been. So they all will be counted as a word. If you are using a statement, I have written a letter, please count the number of words. I have 5. I have written a letter. The number of words in this statement is 5. So all your words will be counted there, no matter whether it is article, it is preposition, it is modals, or it is helping verb. So when you are writing, you should also count them. Got it? This is the next thing you have learned. चलिए, so next लिखिए, if hyphen is used, next point लिखिए, if hyphen is used in the précis, if hyphen is used in the précis, मतलब hyphenated words are used in the précis, then they should be counted as a one word. If hyphen is used in the précis और passage में अगर hyphen वाले words हैं, then they should be counted as a
one word. Cooperative, mother in law. They are not three words, they are not two words, they will be counted as a one word. Got it? Hyphenated words will be counted only as a single word. Hyphenated words will be counted only as a single word. Clear? पारस एंड पायल, जितना अभी तक पढ़ लिया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? बोलो. मैम थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दोगे क्या? कम सुन रहा है बच्चों का ना. थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर दो. बिल्कुल मेरे को स्क्रीन के पास जाके सुनना पड़ रहा है. ओके ओके, हो गया. चलिए बताइए क्या पायल? हाँ हाँ हाँ. I will tell it. In the last, I will give you a passage and you have to make the pressy in the box. ठीक है? जनरली मैं अभी लास्ट में बता दूंगी, कोई भी 5-6 लाइनें लिख के आपको कि किस तरीके से हमको बॉक्स फ्रेम करना है और कैसे बॉक्स में लिखना है. गॉट इट? चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं? नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट लिखिए. रूल, we should always use active voice when writing a précis. We should always use active voice while writing a précis rather than passive voice. We should always use active voice while writing a précis while instead of passive voice, because passive voice will increase the number of words. Because passive voice will increase the number of words. हमें जब भी précis लिखना है तो हमें हमेशा एक्टिव वॉइस में वो पैसिव लिखना है, पैसिव वॉइस यूज करना है, एक्टिव वॉइस रेदर देन पैसिव, क्योंकि पैसिव में नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे कि मैंने लिखा I write a letter. हो गया मैम वो. I write a letter. मुझे इसका प्रेसी बनाना है. अगर मैं पैसिव वॉइस यूज करूंगी तो जो इसका प्रेसी बनेगा उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे. कैसे? क्योंकि आप एक्टिव को पैसिव बनाइए. मैम हो गया. एक्टिव, हाँ, एक्टिव को पैसिव बनाएंगे तो वर्ड्स कम होने की बजाय वर्ड्स इंक्रीज हो गए हमारे. कैसे? अ लेटर इज रिटन बाय मी. प्रेसी में हमारे पास कितने वर्ड थे? 4 वर्ड थे. और प्रेसी मतलब पैसेज में कितने वर्ड थे? 4. हमें 4 से घटा के 2 पे लाना था और गलती हमने क्या कर दी, इसको 4 से बढ़ाकर 6 वर्ड कर दिए. मतलब जो वर्ड्स हमारे इंक्रीज होने चाहिए थे वो इंक्रीज होने की बजाय, जो वर्ड्स हमारे डिक्रीज होने चाहिए थे वो डिक्रीज होने की जगह पे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. तो वी शुड ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रेसी रेदर देन यूजिंग पैसिव वॉइस. गॉट इट? प्रेसी लिखते समय एक्टिव वॉइस की जगह पे पैसिव वॉइस लिखते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड unnecessary use of articles. We should always try, Abhishek please mute yourself. We should always try to
avoid maximum use of articles when we are writing prasi, because unnecessary use of articles, use of a and the, because unnecessary use of articles will increase our number of words, because unnecessary use of articles will increase our number of words, and our ultimate intention is to decrease the number of words, and our ultimate intention is to decrease the number of words. अब बच्चे कहते हैं कि मैम आर्टिकल आपने कह तो दिया कि अवॉइड द मैक्सिमम यूज़ ऑफ आर्टिकल व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रेसी, लेकिन पेपर में हमें अब मजबूरी है, कहीं पे तो आर्टिकल लिखना ही होता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा ही इज अ वेरी गुड बॉय, मैं प्रेसी लिखते समय ये स्टेटमेंट भी बोल सकती हूँ, है ना, ही इज अ वेरी गुड बॉय। इसकी यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी जगह पे मैं कोई और स्टेटमेंट भी लिख सकती हूँ जो मीनिंग वही रहेगा, लेकिन मेरे वर्ड्स कम हो गए। तो अब ये आपका आईक्यू है ना कि आप कैसे वर्ड्स को घटा रहे हो बिना मीनिंग को चेंज किए। आया समझ में तीनों बच्चे? अभिषेक, पारस, पायल, गॉट द पॉइंट? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी आर यूजिंग अवर आईक्यू how to frame the statement in such a small way, in such a way so that words will be reduced and the meaning remains the same. Got this point? चलिए next लिखेंगे, we should avoid, पारस आपको प्रेसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आज आपको लग रहा है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं प्रेसी से रिलेटेड? हाँ, ये नहीं करनी है, ठीक है। ये मिस्टेक्स ये याद कर लेना, टोटल जितना आज मैं लिखवा रही हूँ 1 आवर की क्लास में मैक्सिमम सारा लिखवा दूंगी, ये सारा आपने लर्न करना है और इनको कभी प्रेसी लिखते समय रिपीट नहीं करना ये मिस्टेक्स को, क्योंकि ये वाली मिस्टेक्स पे बच्चों के मतलब रूल्स ही यही है प्रेसी के। आप लोगों को एक्चुअली रूल्स नहीं पता, आप लोग खुद अपनी मर्जी से प्रेसी लिख लेते हो जैसे मर्जी घटा बढ़ा के, लेकिन एक्चुअल जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ दैट इज कॉल्ड प्रेसी राइटिंग, ठीक है। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखो, वी शुड नॉट यूज इडियम एंड फ्रेजेस, वी शुड नॉट यूज इडियम एंड फ्रेजेस व्हेन वी आर यूजिंग, वी शुड नॉट यूज idiom and phrases when we are writing a presi. We should not use idioms and phrases when we are writing a presi because it will increase the number of words. Because it will increase the number of words. For an example, आप जानते होंगे इडियम फ्रेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, थ्रू, थिक एंड थिन, है ना, थ्रू, थिक एंड थिन। इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं? 4। आपने इडियम फ्रेज ना लिखकर इसका मीनिंग लिख दिया इन एनी वे। अब कितने वर्ड रह गए? आपने समझ रहे हो, आपने स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं बदला, जो स्टेटमेंट लिखी थी वो एज इट इज है, लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पर इडियम फ्रेज को लिखते तो 4 वर्ड आते, उसका मीनिंग लिख दिया, मीनिंग तो वही रह गया, इडियम फ्रेज ही रह गया, लेकिन वर्ड कम हो गए। तो अल्टीमेट हर जगह पे हमारी इंटेंशन क्या है, जैसे घर में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि किसी भी तरीके से खर्चा घटाना है, तो अल्टीमेट इंटेंशन आपका ये नहीं है कि सब सफ़र करें,
अल्टीमेट इंटेंशन है कि खर्चा कैसे कम किया जाए। तो बस यहाँ पर अल्टीमेट इंटेंशन ये नहीं है कि पैसेज का मीनिंग कैसे बदला जाए, अल्टीमेट इंटेंशन है कि उन्हीं बातों को कम शब्दों में कैसे कहा जाए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वी शुड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स। वी शुड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स। कैसे? इट इज मच सेफर एंड मच easier. It is, ये सब आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो ना? ओके, इट इज मच सेफर एंड मच easier. टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल वर्ड्स कितने हैं? 8. अगर हम यहाँ पर रिपीटेशन को अवॉइड कर दें तो हमारे पास कितने वर्ड्स रह सकते हैं? इट इज मच सेफर एंड easier. Got it? So if we will avoid the repetition of even a single word, then it will reduce the number of words. एक और एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं. This is my final conclusion. इस क्वेश्चन का प्रेसी बनाओ जल्दी से. This is my final conclusion. कितने वर्ड्स हैं? 5. इसको कैसे प्रेसी बनाओगे स्टेटमेंट को? This is my conclusion. Very good. This is my conclusion because conclusion is always final. So we will have 4 words now. तो किसी भी तरीके से आपने रिपीटेशंस को अवॉइड करना है ताकि हमारा जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो इंक्रीज ना हो. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वी शुड ट्राई टू अवॉइड some conjunctions. We should try to avoid some conjunctions which will increase our number of words. We shall try to avoid some conjunctions which will increase our number of words. For an example, write it, Ram as well as Shyam was going there. Please count the number of words. 1 2 3, इसको एक नहीं मानते हैं. 4 5 6 7 8. क्लियर? अगर मैं इस प्रेसी लिखते समय कोई और कंजक्शन यूज करूं तो वहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे? सी, राम एंड श्याम was going there. So try to avoid some types of conjunctions which will increase our number of words. So आप देखो कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6. Got it? अभिषेक, पारस, पारुल. हाँ बोलो. हाँ हाँ ठीक है. नहीं, मीनिंग नहीं, ये सुपरफ्लुअस एरर का पार्ट है कि कंक्लूजन से पहले कभी भी फाइनल नहीं लिखा जाता क्योंकि हाँ हाँ मैं बस ठीक है. अगर यहाँ पर आप माई को ही चेंज कर दोगे तो वहां पे स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो गया. विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू इम्प्रूव दैट. आप वहां पर
फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की जगह पे थर्ड पर्सन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर वो माई कह रहा है मीन्स दे आर यूजिंग possessive pronoun and this is not pronoun here, this is adjective. This is not pronoun here, this is adjective. For one example I am telling you, please listen. Your copy. अब आप इसको यहाँ पर योर कॉपी को कैसे देखोगे? दिस इज नॉट प्रोनाउन, दिस इज एडजेक्टिव. एक्चुअली आप लोगों ने ग्रामर मेरे से नहीं पढ़ी है. दिस इज एडजेक्टिव एंड कॉपी इज अ नाउन. नाउ गॉट इट? हिज बुक. व्हाट इज हिज? दिस इज नॉट प्रोनाउन, दिस इज एडजेक्टिव एंड बुक इज अ नाउन. नाउ गॉट इट पारस? क्लियर? चलें आगे. नेक्स्ट, और कोई डाउट किसी भी बच्चे को? अभिषेक, पायल, पारस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? जितना भी अभी तक पढ़ लिया, अब कुछ समझ में आ रहा है आज किस तरीके से आपको प्रेसी लिखना है? सारे रूल्स याद कर लेने हैं, जल्दी जल्दी आगे लिखो क्योंकि आपकी 1 आवर की ही क्लास है. नेक्स्ट लिखिए, अवॉइड राइटिंग the name of writer or author. Avoid writing the name of writer and author when you are writing a précis. Avoid writing the name of author and writer when you are writing a précis. précis लिखते समय राइटर का या ऑथर का नेम नहीं लिखना है, क्योंकि ऑथर या राइटर का नेम लिखकर आपने ये बता दिया कि ये प्रेसी उसने लिखा है, मैंने नहीं लिखा. तो प्रेसी लिखते समय कभी भी ऑथर या राइटर का नेम मेंशन नहीं किया जाता. नेक्स्ट लिखिए, डोंट यूज एनी क्विटेशन, एनी कमेंट एंड एनी एक्सप्लेनेशन. Don't write any comment, any quotation or any explanation. Don't write any comment, any explanation or any quotation while you are writing a précis. précis लिखते समय आपको अपनी तरफ से ना तो कोई कमेंट लिखना है, ना क्विटेशन लिखना है, ना कोई एक्सप्लेनेशन लिखना है. whatever is given in the passage you have to make the 1/3 of it. जो लिखा है उसी को ही 1/3 कर देना है हमने. ठीक है? क्लियर? तो ये टोटल प्रेसी राइटिंग का एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया है. अब ये पायल पूछ रही थी कि मैम कैसे बॉक्स में लिखेंगे. आप लोगों को मैं इसका पेजेस फॉरवर्ड कर दूंगी जिस तरीके से पैसेज है और उसका प्रेसी लिखे हुए हैं. एक स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं सामने. द सिनेमा इज एन आउटस्टैंडिंग wonder of this modern वर्ल्ड. ठीक है? ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है. आप लोगों को मैं इसका कुछ सैंपल कॉपी फॉरवर्ड करवा दूंगी कि जिसमें पैसेज प्लस प्रेसी दोनों होंगे. पैसेज भी लिखा है और उसका कैसे प्रेसी, बोलो ठीक रहेगा? बिकॉज थोड़ा सा सीखोगे कि प्रेसी कैसे लिखते हैं. ठीक है? मैम को मैं, हाँ ठीक है, मैं मैम को अभी ये बुक दे जाऊंगी और मंडे को आके ले लूंगी. मैम इसमें से फोटो क्लिक करके आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगी. ठीक है? द सिनेमा इज एन आउटस्टैंडिंग वंडर ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड. इसका आपको प्रेसी बनाना है. कैसे लिखेंगे? इस स्टेटमेंट का प्रेसी बनाइए. द सिनेमा इज एन आउटस्टैंडिंग वंडर ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड. बोलिए, सोचिए इतने में.
दिमाग लगाओ इस स्टेटमेंट का, प्रसी बनाइए। एक्चुअली जब हम प्रसी लिखते हैं तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, वहां पर हमें बहुत सारी लाइंस क्या होती है, छोड़नी होती है ना। एक लाइन का प्रसी बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी लाइन ही हमें कवर करनी होती है। जब पैसेज पूरा पढ़ते हैं तो वहां प्रसी बनाना आसान होता है, बिकॉज कुछ लाइनें छोड़ दी जिनका प्रसी नहीं बनाया, और कुछ लाइन्स है जिनका हमने प्रसी बनाया, फिर भी इसका हम प्रसी लिखते हैं। द सिनेमा इज एन आउटस्टैंडिंग वंडर ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ लिखेंगे the cinema is one of the wonders of the world। टोटल वर्ड काउंट करो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल वर्ड्स कितने थे हमारे पास, 10। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पर बेशक से 10 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ हमने उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज किया, मीनिंग चेंज किए बिना स्टेटमेंट को चेंज किया है। अगर जब आप किसी स्टेटमेंट को वन ऑफ द वंडर्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द पोएट्स, वन ऑफ द टीचर्स लिखते हैं, तो अपने आप में वो सुपरलेटिव होने की सेंस में बात की जाती है, अपने आप में ही वो सुपरलेटिव की सेंस को बताता है। इज इट क्लियर? पारस है क्या? क्या क्या बोल रहे पारस, दोबारा बोलना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, वो कहीं पे नहीं डालना, फुल स्टॉप बॉक्स में कहीं पे नहीं आता। ठीक है, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब ही होता है जब हम लाइन लिख रहे होते हैं तो हमें चेंज करनी है, लेकिन जब आप यहाँ पर बॉक्स में लिख रहे हो तो फुल स्टॉप का कोई मतलब ही नहीं है, कोमा का मतलब ही नहीं है। ठीक है, स्लैश नहीं लिखेंगे, हाइफन नहीं लिखेंगे, वी हैव नो नीड टू यूज एनी टाइप ऑफ हाइफनेटेड साइंस। गॉट इट? आप लोगों को मैं कुछ सैंपल भेजूंगी, आज ही मैम को बोल दूंगी, तो मैम आपको कुछ सैंपल भेज देंगी, प्रेसी एंड हाउ टू राइट देयर आंसर्स। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 लाइंस दे रही हूँ सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से उनका प्रेसी बनाएंगे। लिखिए, आई हैव नो ट्रबल एंड डिफिकल्टी। प्रेसी बनाइए इस वाली स्टेटमेंट का, आई हैव नो ट्रबल एंड डिफिकल्टी। It is much plainer and easier. He was a teacher of English. चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, प्रेसी बनाइए इन 4 लाइनों का। I have everything that comes from abroad. I have everything that comes from abroad. चलिए प्रेसी बनाइए जल्दी से, तीनों बच्चे।
आई एम गिविंग यू 2 minutes टू थिंक अबाउट दैट. बोलिए आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. हो गया. बाकी बच्चे अभिषेक एंड पायल. सोचो, 2 मिनट का टाइम है. हाँ बताओ. क्या बोल रहे हो, दोबारा बताना. पता नहीं, आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत. हाँ. हम्म. हम्म, अच्छा. हाँ. देखो, जो आपका टेस्ट है ना, उसमें मैंने आपका अभी खाली एस्से वाला पार्ट चेक किया है. ठीक है. आप मुझसे पर्सनली एक बार उसका पूछ लेना. अदरवाइज मैं जब चेक करके मैम को दूंगी तो वो मैं आपका सारा उसमें मेंशन कर दूंगी. ठीक है. हाँ, ऐसे तो आप ठीक ही लिख रहे हो. गलतियां आप दो जगह पे कर रहे हो. या तो जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस जहाँ आप फॉर्मेशन कर रहे हो, या प्रेसी. प्रेसी में तो मैंने अभी आपको मार्क्स ही नहीं दिए, ओनली ड्यू टू द रीज़न ये देखने के लिए कि पहले आपको मैं प्रेसी सिखा दूं, उसके बाद आप मुझे प्रेसी लिख कर वापस देना. ठीक है. ये वाला पेपर तो आपको चेक करके मिल जाएगा, लेकिन दोबारा से इस प्रेसी का आप दोबारा मेरे को लिख के देना. ठीक है. हाँ. जो पैसेज में प्रेसी है. हाँ, मे बी कि मैम आपको परसों दे देंगी. ठीक है. क्योंकि मैंने अभी देखो, मैं झूठ नहीं बोलती ऐसे. क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका ऐसे चेक किया है. पेपर नंबर 4 तो मुझे कल ही मिला है. फ्राइडे मेरी क्लास होती है तो मैम ने पेपर नंबर 4 मुझे कल दिया है. और पेपर नंबर 3 का मैंने आपका प्रेस ही नहीं चेक किया है, बाकी पेपर चेक कर दिया है. ठीक है. हाँ. क्या चीज़? अंजलि. हाँ. आई विल चेक. ठीक है. कि वो पेपर मेरे पास है या नहीं है. नहीं होगा तो मैं मैम को बोल दूंगी. ठीक है. चलिए, इसका प्रस्सी बनाइए जल्दी से. आई हैव नो ट्रबल एंड डिफिकल्टी. बोलिए जल्दी से. हाँ, आंसर बताओ. आई हैव नो ट्रबल एंड डिफिकल्टी, प्रस्सी बनाइए. आई हैव नो डिफिकल्टी. आई हैव नो डिफिकल्टी. क्लियर? फर्स्ट इज क्लियर. सेकंड आंसर बताइए. सेकंड बोलो. ठीक है. और बताइए. इट इज़. बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको कराने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रेसी जो है बिल्कुल फाइनली इफेक्टिवली लिख पाओगे. इट इज़ मच प्लेनर एंड ईजियर की जगह पे हम लिखेंगे इट इज़ मच ईजियर. इट इज़ मच ईजियर. सेम. आई हैव नो ट्रबल एंड डिफिकल्टी की जगह पे लिखेंगे आई हैव नो डिफिकल्टी, बिकॉज डिफिकल्टी इटसेल्फ मीन्स ट्रबल. इट इज मच ईजियर. ईजियर वही चीज होती है जो प्लेनर है, जो क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट. ही वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश. गलत है इसका. हाँ, इसका प्रसी कैसे बनाएंगे, सोचो. हाँ चलो, किसने बताया? पायल, वेरी गुड. ही यूज टू टीच इंग्लिश. और क्या लिख सकते हैं?
ही यूज टू टीच इंग्लिश हो सकता है, और गुड आंसर है he taught English, excellent. He taught English, very good, Payal and Paras. He taught English, he used to teach English. Next, I have everything that comes from abroad. हाँ ठीक है, और कुछ? I have foreign things. I have foreign things. Clear? I have everything that comes from abroad. Abroad itself means foreign things. So we have reduced the number of words. So today I hope that you all have learnt your Pressy writing, some rules of Pressy writing, and maybe these rules, if you learn properly, will be helpful for your upcoming exams and the Pressy writing. What you can do, you can write a Pressy of 1 or 2 passages and then send it to me. Then send it to me within 1 minute. Okay, so if you have any problem, any doubt, any question, नेक्स्ट क्लास तो मुझे अभी नहीं पता, मैम आपको बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, और बोलो पायल। किस चीज़ की क्लास? एसए के लिए, ठीक है। अभी देखो प्रेसी के लिए तो आज पहले से ही डिसाइडेड था कि जब भी क्लास होगी तो प्रेसी राइटिंग सिखानी है, तो वो आज हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्लास होगी तो सो आई विल ट्राई कि एसए की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ बोलो बोलो। नहीं, आपको मैं ना इसका एक बार मैम से बोल के मैं फॉर्मेट सेंड करवा दूंगी, आप अपने आप चेक कर लेना, देन यू विल ट्रस्ट, ठीक है, कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेसी राइटिंग। हाँ ठीक है, तो नहीं तो हाँ, नहीं नहीं लगाना, नहीं लगाना, 200% लिख के ले जाओ कि फुल स्टॉप नहीं लगाना अगर बॉक्स में लिख रहे हैं, और अगर बॉक्स में नहीं लिख रहे तो फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। नहीं, बॉक्स में लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।